whatever is holding you in one place, making you feel stuck, there is a reason behind it. So when we work on you, it's not just you, the person in front. It is also your family, your work, your upbringing, and what you want in future. So what exactly is subconscious mind? So what we see, the tip of the iceberg, which is very negligible, which is just 8 to 10%. उसके नीचे क्या है, वहाँ कोई नहीं जाता. उसके बारे में किसी को पता नहीं है. But the real power lies there. इस तरीके के पैटर्न्स रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा देखे जाते हैं प्रिंसी, राइट? और रिलेशनशिप स्टिक भी नहीं रहे हैं लंबे समय तक. सो व्हाई इज इट हैपनिंग नाउडेज? ये पैटर्न क्यों इतने ज्यादा बन रहे हैं? The fast-paced life that we have. At the end of the day, people don't get the time to even sit back and reflect. अगर आप इस चेयर पर आए हैं थेरेपी कराने, कहीं पर आपका एक पोर्शन चाहता है कि आप ठीक हों. बिल्कुल. So that part of your mind wants you to go to the right answer to the problem and will lead the therapist there to find the answers. कि हमारे बहुत सारे बिहेवियर सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं, पैटर्न्स बने हुए हैं, और अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में कहीं पर भी स्टक हैं, उसके ऊपर काम करिए. हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमिता देवनानी. आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच. आज की हमारी गेस्ट हैं प्रिंसी सिंह. प्रिंसी सिंह एक वेलनेस इमोशनल कोच हैं. पिछले 22 सालों से ये प्रैक्टिस कर रही हैं. सो प्रिंसी, वेलकम. Thank you very much. प्रिंसी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को. व्हाट इज़ योर जर्नी टुवर्ड्स बिकमिंग थेरेपिस्ट, कोच एंड हीलिंग की भी एक जर्नी रही है आपकी, बहुत लंबी, है ना? हाँ जी. सो बताइए हमारे. So it all started almost 20 years ago now, 22 to be precise. And I was a young mother. I had 2 boys. The boys were very young that time. And बहुत सारे roles, responsibilities थी. You know, you are a daughter, you're a wife, you're a mother. And you're trying to do your best. Right. Somewhere I felt the need that, you know, you need additional energy, additional power, additional push, motivation, intervention. And I think that's when the need arose. And I was lucky that I got guided very beautifully. I entered the field of healing. I started Reiki. Okay. And before I knew it, मैंने सारे levels कर लिए थे. मैं एक teacher बन गई थी, जबकि मैंने ये plan भी नहीं किया था. But somehow it just worked out. It was very fascinating. I enjoyed what I was learning, and I was able to do with that energy. It's a very, very powerful healing modality. And तब ये नई आई भी थी इंडिया में in the early 90s. It had somehow found its way. And it had come into India, and वो अभी जड़ पकड़ ही रही थी. और हमारी खुशकिस्मती थी कि वो हमारे इर्द गिर्द भी आई और हम भी पहुंचे. And since then there was no looking back. So I still practice. I continue to teach, and I am a devout Reiki channel, and it's become a part of life. And I guess now when I look back, I realize that ये चीजें isolated नहीं होती हैं. They are connected. So you know, when you get into any of these kind of fields where you are genuinely interested, drawn towards, and fascinated by, you know, progressing, improving yourself, people around you, helping them, reaching out in whichever form, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती चली जाती है. तो ये करा मैंने कुछ सालों तक. उसके बाद अपने आप एक ऐसा प्रपोजल आया, एक ऐसा सुझाव आया किसी के थ्रू, and I stepped into this fascinating world of human mind. Again, it was unplanned, because you will agree with me, it's a vast field. बिल्कुल सही बात है. आपको चाहे उसकी जितनी भी जानकारी हो, वो in totality फिर भी शायद will be a drop in the ocean. So I was totally ignorant. I had no clue what I'm stepping into. But it was very fascinating. It was drawing me towards itself. And you know, वो इसी तरीके से मुझे इंट्रोड्यूस भी करा गया कि तुम अब ये कर चुके हो, अगर चाहते हो तो इसको ट्राई करके देखो. If you feel it's your cup of tea,
then you can study further, take it further. If you feel नहीं आपसे resonate नहीं हो रहा, आप छोड़ दीजिएगा. बट वो बस बोलने की बात थी, उसके बाद ऐसा गोता लगाया उसने कि पलट के देखा ही नहीं. एंड उसके बाद आई स्पेंट ऑलमोस्ट नेक्स्ट 4 years studying and training and working, and it was beautiful. It was beautiful. Okay. Now if I look back and I think about it कि अगर मैं वो नहीं करती तो I would have lost out on a huge. क्या सीखा आपने? Would you like to tell my viewers? Yes. So it was, the basis is human psychology. Okay. Why are we the way we are? Why do we behave that way? The logical reasoning behind our thinking, processing information, our reactions, responses, and our behavior, which in turn then later on, it kind of governs everything you do. Right. आपका पूरा सुबह से रात तक जो है वो उसी से इन्फ्लुएंस होता है. Okay. कहने को तो ये बेसिक प्लेटफॉर्म है, बट वहां से जहां हम निकले वो है कि उसको आप और बेहतर कैसे कर सकते हैं. अगर आप किसी भी एरिया इन योर लाइफ में तंग महसूस कर रहे हैं, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, और थिंग्स आर नॉट गोइंग द वे यू वांट देम टू बी, राइट, आप स्टक हैं कहीं. एग्जैक्टली. दैट कुड बी योर रिलेशनशिप्स, मे बी विद योर गर्लफ्रेंड, विद योर husband, with your boss, with your children, or it could be your financial condition. It could be success in the field of studies, or college admission नहीं हो रहा है, या promotions नहीं मिल रही हैं, या पैसा नहीं आ रहा है, investment डूब रही है बार बार, or maybe your social networking somehow is not the way you would want it to be. Right. You are drawing negative, and people who bully you or treat you in a way you don't want to be treated, make you feel unworthy and, not good enough. Right. So everything, so whether it's mental, physical, emotional, spiritual, social, financial, anything, any aspect of human being. I got that. So, मतलब आप जहाँ पर भी अपनी लाइफ में स्टक हैं वहाँ से आपको बाहर निकालने के लिए ये थेरेपी जो आप बता रहे हैं, विच इज़ आई थिंक ट्रांसपर्सनल थेरेपी आपने बताया. Yes, so it's transpersonal regression therapy. Okay, because transpersonal means you and everything about you. Okay. So when we work on you, it's not just you, the person in front. It is also your family, your work, your upbringing, and what you want in future. So it's a broader spectrum. It's an amalgamation of Amita and everything associated with Amita. I got it. Yeah. So that is transpersonal. Trans, beyond personal. Regression, because whatever is holding you in one place, making you feel stuck, there is a reason behind it. It's not just happening out of the blue. It is not just a fluke. उसका एक सॉलिड रीजन है, और वो रीजन क्या है उसको खोद के निकालना, डिस्कवर करना, उसको ठीक करना, ताकि आप ट्रैक पे आए, आपकी लाइफ ट्रैक पे आए, जिस ट्रैक पे आपको चलना है, और आप फिर फुर्ती से आगे बढ़े. राइट. सो आपके रिग्रेशन से ही अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, विच इज़ मोस्टली ऑन सबकॉन्शियस माइंड और हमारे पैटर्न्स. Yes. जो हमारे बिहेवियर को ड्राइव करते हैं. एज ए साइकोलॉजिस्ट वी नो कि हमारा काम जो है बेसिकली ये जो टॉप मोस्ट कॉन्शियस लेवल है वहाँ पर है नहीं. अगर हम कन्वर्सेशन भी कर रहे हैं अपने क्लाइंट के साथ, बात भी कर रहे हैं, तो हम अपनी बातचीत में भी टैप करते हैं उनके सबकॉन्शियस माइंड में थ्रू राइट करेक्ट काइंड ऑफ क्वेश्चनिंग. है ना? इसीलिए इसकी इम्पॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है. अगर हमें अपने लाइफ में, जैसे आपने बोला, बाहर निकलना है उन एरियाज में जहाँ पर आप स्टक हैं. करेक्ट. सो कैन यू टेल अस मोर अबाउट व्हाट इज़ एग्जैक्टली सबकॉन्शियस माइंड इज़, क्योंकि यहाँ से ही इसी के ऊपर हम अपनी बिल्डिंग बनाएंगे कि क्या ज़रूरत है इस पे काम होने की. सो व्हाट एग्जैक्टली सबकॉन्शियस माइंड. सो आमतौर पे जब इसके बारे में कहीं भी चर्चा शुरू होती है, एक बहुत फेमिलियर सी फोटो दिखाई जाती है, और आपने तो खैर देखी ही होगी, ऑफ द आइसबर्ग. या सो देखने में बहुत सिंपल है, बट उसके अंदर जब आप घुसते हैं, धीरे धीरे एक एक परत उसकी उतार के समझते हैं, यू रियलाइज
कि वो बहुत खूबसूरती से इसको पूरा एक्सप्लेन करता है. Right. So what we see, the tip of the iceberg, which is very negligible, which is just 8 to 10%, is the conscious mind. Right. और हम और आप उसी पर बहुत अभिमान करते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, Right. क्योंकि हम सिर्फ वो 10% अपना माइंड इस्तेमाल कर रहे हैं. Right. Because we use it for everything in our daily needs, for logic, reason, analysis, everything. सोचना, विचारना, even the aims and objectives which we have. 5 साल बाद कहाँ पहुँचना है, 10 साल बाद हम अपने आप को कहाँ देखते हैं. And उसके नीचे क्या है, वहाँ कोई नहीं जाता, उसके बारे में किसी को पता नहीं है. But the real power lies there. Right. And that is the subconscious mind, which is below the level of our awareness, जिसके बारे में हमको नहीं पता है. And because we don't know about it, we cannot go in there and find the answers to our questions or our problems. And that's where you need a therapist who can gently hold your hand, guide you through trying to find out कहाँ पर story अटकी हुई है. Right. So थेरेपी के अंदर एज ए साइकोलॉजिस्ट सबकॉन्शियस माइंड में जाना क्यों इम्पॉर्टेंट है? ऐसा क्या है वहाँ पर जो हमारे लिए, जो सरफेस का बिहेवियर है, जो राइट नाउ जैसे आपने बोला रिलेशनशिप में 2 लोगों के बीच में बन नहीं रही है, लड़ाई झगड़े बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं, है ना? और मे बी शायद दोनों ही चाहते हैं रिलेशनशिप को ठीक करना, पर ठीक नहीं हो रहा है. राइट. या फिर एक इंसान है जो अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहता है, प्रमोशन चाहता है, पर चाह कर भी मेहनत भी कर रहा है, पर वो उसकी मेहनत का उसको फल नहीं मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी नहीं पता क्या चल रहा है. व्हाई इज इट हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, है ना? तो एज ए थेरेपिस्ट हाउ विल यू टैप इनटू देयर सबकॉन्शियस माइंड, और ऐसा क्या आप वहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं? राइट. So देखिए, subconscious mind, you're also aware, is where all the information is stored. Right. So all the experiences that you've had in your lifetime till now are all stored there. It's a data bank. It's a storage place. जहाँ पर हर चीज randomly बस stored है. कुछ भी अगर आपकी लाइफ में काम नहीं बन रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है, वो वहाँ मिलेगा जवाब. तो अगर आप कहीं फंसे हुए हैं, आप सिर्फ धक्का लगा रहे हैं, बट आपको ये नहीं दिख रहा कि वहां से शायद एक रस्सी कहीं पे फंसी पड़ी है, चेन उतरी हुई है, या टायर में कुछ ऐसा अड़ गया है जिसका सोर्स उधर है. तो जब तक आप वो डिटेल्ड स्टडी करके उसको सही ढंग से नहीं निकालेंगे, all the efforts that you're putting in just pushing that vehicle further will be failed. I mean, they will fail. Right. It's a waste. So अगर वो कहीं पे जकड़ी हुई है किसी भी चीज में, पहले अगर आप सूझबूझ से उसको डिसएंटैंगल कर लेते हैं, the effort involved will be lesser. It will be a successful project and you experience the joy of liberation. Otherwise it leads to frustration. Right. आप धक्का मारे जा रहे हैं, एक के बाद एक failure and you break and you just give up. Instead, think smartly, try an alternative strategy, see what is stuck there, what's causing it, remove that, and वो automatically release हो जाएगा. पर कहीं कुछ है जो हमको अटका के बैठा है, past experiences, हाँ, अटका के बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से वो कोई नॉट पड़ी हुई है. जब तक वो नॉट खुलती नहीं है, तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाते. Yes. So it वो बिल्कुल ऐसे फंस गई है. जब आप कई बार कहीं उलझन हो धागे में, कई बार खुल जाती है, कई बार इन योर अटेम्प्ट टू ओपन इट वो और उलझ होके टाइट हो जाती है, फिर काटना ही पड़ता है. तो ऐसी वाली आप पहले जरूर, सो सी आई टेल ऑल माय क्लाइंट्स आल्सो, इफ यू कैन मैनेज टू unentangle it on your own, it's super. Right. हर चीज के लिए आपको थेरेपी के लिए आने की जरूरत नहीं है. सही बात है. कुछ चीजें हम केपेबल होते हैं और अपने परिवार के सपोर्ट के साथ हम कर लेते हैं. हो सकता है उसमें थोड़ा समय लगे, पहली बार में आप सफल ना हो, दूसरी या तीसरी बार में हो जाए, बट अगर आपको सफलता मिल गई और जो आपको चाहिए था वो मिल गया, सुपर कूल, बिंगो, वर्क वेल डन. बट वो
कोशिश कर करके बस अब वो कसती जा रही है, अब सिर्फ काटने वाला रह गया है। तो उससे पहले आप चले जाएं, डिवोर्स पेपर देने से पहले आप एक बार चले जाएं, या बच्चे को इल ट्रीट करने से पहले, योर एनी सच सिचुएशन जहां पर when you feel that अब आप एज तक पहुंच गए हैं and you feel now there is no more I can do, there is no other solution, so there just wait for a second and just come once. That's so true. It will give you immense relief. Subconscious mind कैसे बनता है? I would say कि कहाँ से चीजें वहां पर आती हैं, मतलब क्यों हम अटके रहते हैं, ऐसा क्या होता है वहां पे, क्या बोलोगे आप इसके बारे में? So देखिए, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में एक हल्का सा फिल्टर होता है, जो कि कॉन्शियस को इन कंट्रोल रहने देता है और सबकॉन्शियस को वो बंद रखता है, क्योंकि उसकी रोज एवरीडे जरूरत नहीं है। तो वो नीचे बहुत खुश है डोमेंट रहकर, इट्स हैप्पी द वे इट इज, राइट? एंड you can lead your life using just your conscious mind because it's capable enough. Going to the subconscious is not everyday or mandatory or important. It's only when the need arises. Okay. So it's like, I tell my clients also, you don't go in for the surgery कि चलो मजा आ रहा है आज, चलो जाके एक पेट खुलवा के देख लेते हैं अंदर क्या चल रहा है। जब तकलीफ होती है आप तभी जाते हैं सर्जन के पास, और वो खोल के अंदर बताता है यहाँ कुछ फंस गया, यहाँ कुछ हो गया, सर्जरी करता है और आपको सिल के वापस भेज देता है। उसी तरह सबकॉन्शियस के अंदर जब कोई चीज भरते बिकॉज इट्स योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। सो सपोज यू हैव बीन एक्सपीरियंसिंग बिट्रेयल, क्लास 1 से दोस्त आपको बिट्रे करते आ रहे हैं, आप अपना सब इन्वेस्ट करते हैं रिलेशनशिप में, बट आपको हर बार चीट किया जाता है, चाहे पैसे के नाम पे, कॉपी के नाम पे, होमवर्क के नाम पे, टिफिन शेयर ना करने के नाम पे, जो भी छोटी मोटी बातें करते his folder of cheating and betrayal and trust is a weak spot in his life, in his relationships. And now as he's grown up, also he feels कि मैं बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट में, फैमिली मेंबर्स के साथ मैं हर बार चीट होता हूँ, राइट? मेरा ट्रस्ट नहीं कहीं भी सॉलिड रह पाता, तो वो क्या करे? तो ऐसे केस में जब आप ट्रेस करते हैं, सबकॉन्शियस में जाके देखते हैं, तो पता लगता है कि बचपन में कुछ ऐसा हुआ था जब बहुत बड़ा झटका लगा, और इस बच्चे ने सोच लिया that I can never trust anybody. That belief system is etched in stone for this child. Because day after day, he was cheated time and again. In different ways, by different people, in different situations and different timelines. But cheating was common. So this boy or man somehow चीटिंग और बिट्रेयल और ट्रस्ट के साथ इसका बहुत जबरदस्त 36 का आंकड़ा है अब। I got that. तो अब वो चाहे जितनी कोशिश कर लेता है with the best of intention, also when he's putting money somewhere or he's forming a business alliance with somebody, this poor fellow is always cheated, he is unsuccessful. Because उसका वो belief system इतना strong है, उसका association cheating के साथ इतना जबरदस्त बन गया है कि ना चाहते हुए भी ये नहीं चाहता, बट इसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस तरीके से कंडीशनड हो चुका है। फॉर हिम ट्रस्टिंग समबडी इज गोइंग अगेंस्ट हिज सर्वाइवल, राइट? बिकॉज ही फियर्स ही विल बी चीटेड। सो बिफोर ही रीचेस दैट लेवल, वो पहले से ही गड़बड़ हो जाती है। सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल हियर, इट्स कमिंग बैक टू मी नाउ। देयर वाज अ मैन इन हिज 40s जो बार बार बिजनेस सेटअप करते थे, और बहुत अच्छा बिजनेस जब ऊपर पहुंच जाता था, इट वुड नोज डाइव। अच्छा, ओके। ही वुड अगेन कलेक्ट हिमसेल्फ, इन्वेस्ट अगेन, बिल्ड अप हिज बिजनेस, अगेन नोज डाइव। और ये भी नहीं कि एवरेज बिजनेस, खूब ऊंचा, यू नो, लॉट ऑफ वेल्थ, लॉट ऑफ एफ्लुएंस, बहुत बढ़िया, बट द पैटर्न ऑफ इट नोज डाइविंग, क्रैशिंग एंड बीइंग बैंकरप्ट अगेन एंड अगेन वाज लाइक किसी को समझ नहीं आ रही थी कि इसका क्या निकालें। वो जब सेशन के लिए गए, थेरेपी उन्होंने करवाई, तो उनका जो पता लगा was mind blowing. He as a 4-year-old child
when your mind is still developing. Right. Till the age of 7, you are still developing. Right. He was very close to his grandfather. Hmm. दादाजी के घर रहते थे और दादाजी लैंडलॉर्ड थे, रुतबा था, बहुत पैसा था, लोग थे काम करने के लिए. And for him, his dadaji was like God. Right. He used to look up to his dadaji. One fine day, dadaji just out of the blue gets a paralytic attack. उन्हें paralysis हो जाता है और वो बेड पे लेट जाते हैं. And वो जो ठाठ बाट रुतबा, you know, that personality he was so enamored by, suddenly he's on the bed. So for this child who does not know what happened, उसने अपना जो भी 2+2 किया, उसको कहीं पर ये लगा कि अगर मैं इतना सक्सेसफुल कभी बनूंगा तो मेरा भी यही हाल होगा. So his subconscious does not allow him to be super successful because it's a threat. And subconscious is survival को इंश्योर करने वाला. तो जहाँ उसको थ्रेट परसीव होता है वो वहाँ दुकान अपनी बंद कर दे. तो उसको लगा अब मैं मल्टी मिलियनेयर बनने वाला हूँ, मेरी बहुत you know, I'm famous, I'm big, I'm successful. Subconscious says no, we are not going there because you will also land up like this. चलो जी, बिजनेस में लॉस, दुकान बंद. राइट. सो इसका मतलब है कि जहाँ पर हमारे वो पैटर्न जो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, जो पैटर्न रिकर हो रहे हैं, उनको पकड़ना, पहचानना और उनके ऊपर काम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही हमें टैप कराते हैं कि ये आ कहाँ से रहा है, and which is important to release, right? So yeah, so here I'd like to give an example. It's almost like, you know, you're a 40-year-old person and you're trying to fit into your 10-year-old jean जो आप 10 साल के जब थे पहनते थे. आप कैसे अपनी जीन्स वो 10 साल वाली उम्र की फंसाएंगे अपने ऊपर? वो तब आपका माइंडसेट, आपकी सोच उस जमाने की है. वो अगर अभी तक चल रही है तो ऑब्वियसली आप उसमें फंसा हुआ महसूस करेंगे. राइट. So when you're growing up, you're in an impressionable age and stage. Your mind is still developing. What you pick up from your environment is true for you that time, not now. Now you're a mature, independent, confident person. उस समय की बातें जो आपने डिसाइड करी थी क्योंकि आपके अनुभव उस प्रकार के थे, वो अब आपको एप्लीकेबल नहीं है. बट कहीं वो कई बार वो फंसे हुए रह जाते हैं. आप भी अनअवेयर हैं बट उसका असर आपको अभी भी फील हो रहा है. तो जरूरी है आप जाके उसको निकालें. यू नीड टू क्लियर दैट वार्डरोब. इट इज ऑफ नो यूज. इट्स जस्ट क्लटरिंग अप योर स्पेस. यू नीड टू गेट रिड ऑफ दैट सो दैट यू पुट थिंग्स व्हिच आर रेलेवेंट टू यू नाउ into that space. क्योंकि जगह तो वही है ना. सही बात है. कई चुपचाप पड़े हैं, वो अपना असर नहीं दिखा रहे. ओके, दैट्स फाइन, उनको रहने दो. बट कुछ वहां पे थोड़ी हबड़ दबड़ मचा रहे हैं. वो द मिस्चीवियस चिल्ड्रन, नॉटी वंस, यू नो, स्टैंडिंग ऑन द टेबल एंड स्क्रीमिंग फॉर द टीचर्स अटेंशन. आई थिंक ये वो चीजें हैं जो बहुत ही इमोशनली डिस्टर्ब रही होंगी, जिससे हमारा माइंड के पैटर्न्स जो सबकॉन्शियस माइंड के हैं बहुत ही ट्रिगर वाले, बहुत ही वो इमोशनली वॉलेटाइल जो हम होते, सेंसिटिव हो जाते हैं उन एरियाज को लेके. करेक्ट. और वो जब भी शो अप होता है, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे हमारे सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम के इश्यूज हों, तो ये होते हैं. राइट. ये पॉपअप होते हैं और ये हमारे को फिर हमारे डिजायर्ड गोल्स को अचीव करने से रोक देते हैं. करेक्ट. इस तरीके के पैटर्न्स रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं प्रिंसी. राइट. किसी का भी रिलेशनशिप अगर अच्छा नहीं चल रहा है और अदर किसी का अगर अच्छा चल भी रहा है, पर कई बार हमारा अच्छा ऐसे ही चलता है, नॉट गिविंग अ थॉट कि हम इसके लिए कोई कॉन्शियसली कुछ कर रहे हैं, बिकॉज हमारे शायद वो पैटर्न्स हमारे ऐसे बना दिए गए हैं, बन गए हैं बचपन से कि यू हैव टू ऐसा एडजस्ट करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको चलना है. तो वो आपका वहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट मैकेनिज़्म में वो चलते रहते हैं हमारे रिलेशनशिप भी. राइट. पर कई बार बचपन के इन स्टोरेज की वजह से, ये पैटर्न्स की वजह से रिलेशनशिप बहुत ख़राब भी हो जाते हैं और आजकल ज़्यादा हो रहा है ना. इनके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं और आजकल ये बढ़ क्यों रहे हैं, ये वाले पैटर्न्स आज की जनरेशन में क्यों है इतने ज़्यादा? क्योंकि एज ए कोच, एज ए लाइफ कोच, एज ए थेरेपिस्ट, यू नो कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं और रिलेशनशिप स्टिक भी नहीं रहे हैं लंबे समय तक. सो व्हाई इज़ इट हैपनिंग नाउ डेज? ये पैटर्न क्यों इतने ज़्यादा बन रहे हैं? सी,
एक तो I feel the fast-paced life that we have. People don't get the time to even sit back and reflect. At the end of the day, if you can just sit back in a safe space, be by yourself, just collect your thoughts and reflect, introspect. कहाँ कहाँ मुझे आज क्या क्या महसूस हुआ, क्यों हुआ होगा, मैं क्या बेहतर कर सकता था, कर सकती थी, and what can I do now? And reaching out to somebody who can talk to you, guide you, those kind of friendships, relationships, the absence of having that confidence that I can just approach somebody and talk to them, because the other person is also living a jet set life. समय नहीं है, सबके अपने issues हैं, वो उन्हीं में उलझे पड़े हैं. जब मैं ही परेशान हूँ तो मैं दूसरे का हाथ पकड़ के उसको क्या सलाह दे सकती हूँ, है ना? So I think it's a combination of everything that's around us right now. Social media पे लोग, बच्चे मैं देखती हूँ कई बार, any problem they have, they quickly just type on Google and they get the answer. It satisfies them for 2 minutes, 5 minutes. They pick up some big heavy words, and they say, oh, it was displaced anger, or it was right, projected anger. मतलब words that probably I would also take a minute to think कि क्या बोला इसने. तो वो vocabulary तो पकड़ लेते हैं, but उसको apply कैसे करना है, उसका महत्व क्या है, वो कहाँ से आ रहा है, उसको कैसे तोड़ सकते हैं, वो सब जानकारी Google नहीं देता है. Right, so they feel मैंने पढ़ लिया, मुझे सब मालूम है, but at the end of the day उनका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का फिर भी झगड़ा हो रहा है. गूगल ने जवाब तो दे दिया, but उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो भी तो कोई बताए. So it's और कहीं ये शायद चाइल्डहुड के पैटर्न्स भी तो हैं प्रिंसी, जो हमारी जनरेशन कह लें, क्योंकि हम लोग भी कुछ मतलब जनरलाइजेशन आई वोंट डू, पर एक थिंग है जहाँ पर एक राइचियसनेस, और ये हमारे भी जो परफेक्शनिज्म का जो हमारी जनरेशन थोड़ा सा डील करती आई है, आई वुड से कि हमें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, तो वो हम अपने बच्चों के ऊपर डालते रहे, और वहाँ से बच्चों ने जो है अनलवेबल होने की फीलिंग्स की, हमारे पेरेंट्स तो सारा दिन हमसे चीज़ें करवाने के लिए ही करते हैं, दे आर नॉट गिविंग अस अनकंडीशनल लव सपोर्ट. हम लोगों ने बहुत ज़्यादा शो नहीं किया वहाँ पर, और हमारी अपने हस्बैंड्स के साथ नहीं बन रही है, वहाँ पर फाइट्स हो रही हैं, तो बच्चे जब उसी माहौल में बड़े हो रहे हैं, पल रहे हैं, फाइट्स देख रहे हैं घरों के अंदर, तो ऐसे पैटर्न बन रहे हैं उनके माइंड के अंदर जो अनलवेबल होने की फीलिंग्स, परफेक्शनिस्ट होने की फीलिंग दे रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं जा कर के अब रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि ओके, ये तो भाई ऐसे ही, मतलब हमको ये प्यार नहीं मिलने वाला है, ये सिर्फ सेक्स का गेम चल रहा है यहाँ पर, प्यार का गेम नहीं चल रहा है यहाँ पर. What would you say about it? This is this is that universal fact generation gap. Right. Every generation will think and behave differently from the previous one. Right. When we were growing up, we also had our quota of tiffs with our mothers and fathers. हमें थोड़ी सी लिबर्टी मिलती थी, हम थोड़ी और चाहते थे, उन लोग को नहीं समझ में आता था, और हमारी भी बहस होती थी. अब वही चीज मल्टीप्लाई बाय 10, 20, 100 टाइम्स और कर लीजिए. हम फ्रीडम ज्यादा देते हैं अपने बच्चों को, थिंकिंग हम बड़े लिबरल हैं, बट उनको उससे 10 गुना ज्यादा फ्रीडम चाहिए. सो द जनरेशन गैप विल बी देयर. दैट इज समथिंग वी कांट डू एनीथिंग अबाउट. बट व्हाट यू आर सेइंग इज the patterns, like I said, in the subconscious mind, problems accumulate if not addressed. Right. So this brings me to another very important facet of therapy known as transgenerational. So अगर किसी के दादा दादी के जनरेशन से कोई इशू चल रहा है which has not been resolved and not been addressed, and mind you अमिता, उस जमाने में इन चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था. People would not come out and talk about any of this. It would be seen as disloyalty, talking about your family problems. Right? वो चल रहा है, हमारी जनरेशन वाले बच्चों ने वो देखा है, एंड हमारा खून खौलता है कि उन लोगों ने ये रिजॉल्व क्यों नहीं किया और हमें दिया. And they want us to just close our eyes and not address that big white elephant in the room. Right. Same thing when we do and our children see it, their blood boils at 10 times more the rate.
Why are they not talking about it? Why are they not addressing this? If there is a marital conflict happening at home, why are they not talking about it? Why are they not addressing and seeking solution? Right. क्यों सोसाइटी का स्टिग्मा, लोग क्या कहेंगे के बीच में उन्होंने उसको दबा के रख दिया गया है, तो वो जब तक एड्रेस नहीं होगा वो बहुत लाजमी है कि अगली जनरेशन में भी जाएगा, क्योंकि उनकी बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट बच्चों का क्लियर नहीं है. राइट. दे हैव नॉट सीन हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप्स इन द हाउस. हाउ डू यू टीच समबडी हु हैज सीन अ डिसफंक्शनल होम कि तुम ऐसे बनो? कहाँ से सीखेगा वो? सही बात है. See, because if we go to basics of psychology, a child learns from his environment. His family of orientation, if fails to give him these basic values, where will he learn? Our curriculum, you've seen, CBSE doesn't teach you all this. बिल्कुल भी नहीं. Unless we start doing this in education. Right. तो अगर उसको घर पे भी नहीं मिल रहा, स्कूल में भी नहीं मिल रहा, कॉलेज में भी नहीं मिल रहा, तो वो अपनी मैरिटल लाइफ में कहाँ से लाएगा? That's so true. You have to be an example for your children. If you tell them कि आपकी बेटा शादी के बाद शादी चलनी चाहिए और उन्होंने पेरेंट्स को चीट करते हुए देखा है, तो वो बच्चा कैसे करेगा? बिल्कुल सही बात है. कोई इक्का दुक्का हो सकता है, बहुत ही बढ़िया बच्चा हो तो वो ना सही निकल जाए, वो शायद वो कहीं और से अपने पैटर्न लेके आ रहा होगा. बिकॉज हर एक जना अपनी कहीं ना कहीं से क्या उसको क्लिक कर जाता है, कौन सी चीज़ उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसको इमोशनली ट्रिगर कर जाती है, वी नेवर नो, राइट. तो वो कहीं और से कोई और पैटर्न लेके आ रहा हो, पर आपने जो देना था वो तो आपके वहाँ से गया नहीं. एक्चुअली जो वैल्यू सिस्टम, जो कल्चर आपने अपने बच्चों को पास ऑन करना था, वो करने में कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं. तो इस तरीके के पैटर्न्स या आप अवेयर ही नहीं है. You're not aware that you are defaulting. Right. So this brings me to another very interesting topic. So when I started working, I was mostly working with women clients, mothers. Slowly and gradually it became mother and child. Because the mothers realized कि जब उन्होंने थेरेपी ली, उन्होंने कोई एक इशू रिजॉल्व किया, they said यार इसका तो बहुत असर उस पर भी पड़ा है कि वो तो मुझे बचपन से देख रहा है, मेरे साथ रह रहा है, और मैंने अब जब अपना ये बिहेवियर ठीक करा है अंडरस्टैंडिंग के साथ कि ये कहाँ से आ रहा था और ये पिछले 20 साल में इसका असर परिवार के हर इंसान पे, सदस्य पे पड़ा है. आई वॉन्ट यू टू प्लीज वर्क ऑन माई चाइल्ड ऑल्सो. Or sometimes it happens the other way around. The mother brings the child, saying my child is not doing A, B, C, D, which ideally the child should be doing. There is something wrong. I want you to work with the child. And when we work with the child, we see, sure enough, it's coming from the mother or the father. And then the mother also comes in for therapy. So ले दे के मदर एंड चाइल्ड का एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग है. बहुत स्ट्रांग है. आप भले अम्बिलिकल कॉर्ड डिलीवरी के बाद काट देते हैं, बट आपका आदान प्रदान सब चलता रहता है. तो मदर कैसा घर में फील करती हैं, कैसा व्यवहार करती हैं, उनका एसोसिएशन, उनका रिलेशनशिप उनकी मदर इन लॉ के साथ, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, घर के बाकी सदस्यों के साथ कैसा है, आप ना चाहती हो knowingly, unknowingly, subconsciously, it's all going to your child. Right. And the child is picking up. Right. So any problem that the family में कोई एक member face कर रहा है, वो कुछ ना कुछ मात्रा में दूसरों के पास भी गया है, जाएगी. राइट. सो वही जो कहते हैं कि 7 साल की उम्र तक तो बच्चा वैसे भी अपनी थीटा वेव्स में, हिप्नोटिक वेव्स में होता है, तो जो भी आसपास चल रहा होता है वो सब वैसे के वैसे ही like a sponge they are absorbing it unfiltered. बिल्कुल. completely. और वो इतने स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स बनाता है कि उन पैटर्न्स को बाद में जाकर के तोड़ना, आई थिंक फिर थेरेपी इज अ बेस्ट वे. अदरवाइज जब तक आपको पता ही नहीं है व्हाट इज स्टॉपिंग यू, कहाँ पे गांठ बंधी है, कहाँ पे वो नॉब अटका है, जब तक आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे काम करोगे उसके ऊपर. एंड दीज थेरेपीज आर ऑलमोस्ट लाइक लेजर सर्जरीज. यू गो स्ट्रेट टू द प्रॉब्लम, sort it out and you come out. Just that and out. So it's very effective. It's very precise and its results are effective and profound. उसी वक्त दिखते हैं आपको. I got that. So Princey, we are seeing कि बहुत सारे सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न्स बनते हैं जो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, राइट? आई वुड लाइक आप कोई ऐसा अपनी ही थेरेपी से कोई ऐसा केस हमारे व्यूअर्स को बताएं विच कैन रियली गिव देम कि कैसे ये
वर्क करता है, मतलब किस तरीके से बॉयल डाउन होकर के आपके पैटर्न्स, जो आपने बोला जनरेशनल पैटर्न्स भी होते हैं, जो किस तरीके से आ जाते हैं, राइट? तो आप क्या बताओगे? कोई एक आध केस हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करिए विच विल रियली ब्लू देम अप कि ओके दिस इज हाउ इट इज. So, like I was sharing with you, the lady who'd come to me, जिनको एक Right. बहुत she could not explain कि एक बहुत ज़बरदस्त fear है उनको किसी चीज़ का. एंड शी से मैं तो घर पे रहती हूँ, आई एम अ हाउस वाइफ, मेरे सब ठीक ठाक है, हस्बैंड बच्चे एवरीथिंग इज़ फाइन, बट फिर भी एक दिल में कोई अजीब सा एक डर बैठा हुआ है जो मैं बयान नहीं कर सकती, बिकॉज आई हैव नॉट been able to put my finger on it कि what is it, where is it coming from, but I feel that fear at every moment of the day. कोई बाहर जाता है, मुझे डर लगता है ये बाहर जा रहे हैं, आई होप कुछ ना हो, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आई होप इनको कुछ ना हो, हस्बैंड किसी मीटिंग में जाना है फ्लाइट पकड़ के, हर वक्त शी सेज फियर फियर फियर, डर डर, एंड इट इज आपको बांध के रखता है फियर. बिल्कुल, इट इज नॉट समथिंग बहुत ही क्रिपलिंग है अगर इस तरीके का डर हो. बिल्कुल, यू डू नॉट वांट टू हैव दैट फीलिंग कि आप एक सेकंड भी फ्री होके सांस ना ले पाए. आपका दिमाग हर वक्त ओवरवर्क्ड स्टेट में है. राइट. सो व्हेन आई वर्कड विद हर, टू मी इट सीम्ड अ वेरी रेगुलर थेरेपी कि कुछ एक निकल आएगा, कुछ जिस वजह से इनको हुआ होगा कुछ फियर का एक्सपीरियंस. बट व्हाट मेड इट सो स्पेशल दैट आई एम रिमेम्बरिंग इट एंड रिकाउंटिंग इट टू यू इज दैट it was a memory of 1947 riots, and that lady was not even born. So when we finally, after the therapy, got down to put all facts on the table कि ये क्या था, it was her mother's fear which had just been passed on to her. So mom इतनी उस ग्रिप में थी fear के, और वो इस बच्चे का environment था. So this goes to show कि environment का भी कितना असर पड़ता है कि वो इसके लिए real fear, इसका खुद का as if she's been through it, इतना जबरदस्त उसका प्रभाव, मतलब मदर ने इसको एक्सपीरियंस किया और मे बी चाइल्ड के साथ शेयर किया होगा. मदर्स हम लोग करते हैं अपने बच्चों के साथ. बट इमेजिन हाउ हेवी and how sticky it was, कि इस बच्चे के सबकॉन्शियस में उसका ऐसा प्रभाव पड़ा. वहां से ये शुरू हुआ, और उसके बाद इनके जो छोटे 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 फियर्स थे वो उसमें जुड़ते चले गए, और अब वो इतने बन गए. So like I told you, the subconscious is used for storing happy, sad, not so happy, all kinds of experiences and memories. तो ये एक ऐसा बन गया जो बढ़ता चला गया beyond any, सोच ही नहीं सकते आप, इतनी मैग्नीट्यूड इसकी बढ़ गई that it started exerting its pressure and influence on everything this lady was doing. It grew so much, manifold and unchecked, and she didn't even know. So it's almost like a tumor, unstoppable, and it's growing. So जब इसको हमने फिर फाइनली आइडेंटिफाई किया और इसको सॉर्ट आउट किया, तो बिल्कुल जैसे एक बलून था, डिफ्लेट हो गया. उनको सांस आ गई जब आफ्टर दैट. एब्सोल्युटली, बिकॉज वो कब से 30 साल से वो बढ़ता ही चला जा रहा था, and was just growing inside her. She wasn't aware of it. That this was the source of all her worries and fears, which were just latching on to it. सो जी, ये जब आप उनके साथ थेरेपी सेशन किया, सो उनको ये अपने आप याद आ गया, मतलब आप जैसे कहते हो कि ट्रांसपर्सनल में आप अंदर डीपर लेवल पे टैप करते हैं थ्रू बात करते हुए, राइट? तो वैसे अपने आप याद आया, या आप उनको थोड़ा सा रिग्रेशन थेरेपी में और ट्रांस में लेके गए एंड थ्रू दैट उनको कुछ याद आया? सो like I told you earlier, when you're on the right track, through right kind of conversation, only you have to pick up, right? See, with practice, with experience, I got that. इधर ये तो टाइम वेस्ट करने वाली बात है, इस पे नहीं जाना है, हमें मुद्दे पे रहना है. तो कई बार ऐसे रास्ते आते हैं, ये रिंग रोड है, रिंग रोड नहीं तुम्हें घर ले जाना है, साइड वाली पतली गलियों में नहीं घुसना है. सो आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एंड अगर बाय चांस ना भी हो, आपने गलत एक टर्न ले भी लिया, बहुत सारे यू टर्न आते हैं, आप वापस घूम के आ सकते हैं, एंड यू कैन रीजॉइन दैट रास्ता, एंड दैट टेक्स यू
Because see, somewhere our mind is very, very smart. इतना smart तो बहुत ज़्यादा है ना? You know the power of the mind. राइट अगर आप इस चेयर पर आए हैं थेरेपी कराने, कहीं पर आपका एक पोर्शन चाहता है कि आप ठीक हों. बिल्कुल So that part of your mind wants you to go to the right answer to the problem and will lead the therapist there to find the answers. You don't come to a therapist for a failed therapy. सही बात है. You have come to find your right. answers. और आपको पैसे भी आप दोगे थेरेपी के. इट्स नॉट यार कि आपको कहीं से कुछ मिल रहा है. सो डेफिनेटली यू हैव इन दिस माइंड कि मुझे इसको सक्सेसफुल करना है. So initially they may be a little reluctant to open up. Right. Because they have to now share their deepest, darkest emotions. Right. It could be fear, it could be guilt, it could be shame. तो वो शुरू में थोड़ा सा आपके साथ उनका जब तक गठबंधन बनता है, थोड़ा सा वो हिचकिचा सकते हैं, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, बट जब वो खुलना शुरू करते हैं, बात करना शुरू करते हैं, देन वो पूरा खोलते हैं, बिकॉज उनको पता है कि उनको इत्मीनान नहीं आएगा. Right. और कहीं पर आप ओवर द इयर्स प्रैक्टिस करके इतने सीजन्ड हो जाते हैं, आपको भी पता होता है इनको कैसे कराना है कि ये वहाँ तक पहुँच जाए. और जैसे ही वो अपनी मंजिल पे पहुँचते हैं एंड दे लेट आउट व्हाटएवर इज ट्रबलिंग देम, ऐसी गहरी लंबी ठंडी सांस आती है, उसको भी पता लग जाता है, आपको भी पता लग जाता है, इशू रिजॉल्व हो गया है. I got that. So it is absolutely magical. It is liberating. There are no words that can tell you how it feels. It's experiential, and it's beautiful. It's beautiful, and especially when you know that you're doing it for yourself. The person who matters the most, the person you love the most, because you know when you work on yourself, when you improve yourself, all your loved ones will benefit. When you are a happier, lighter, freer person, you are a better wife, a better mother, a better colleague, a better daughter. That's so true. That's so true. So this question हो सकता है थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो, but I would really like to ask, love to ask प्रिंसी, आप यूज़ करते हैं ट्रांसपर्सनल थेरेपी, जिसमें आपने बताया कि विद लाइक 3-4 घंटे का एक सेशन चला जाता है, जिसमें आप उनके सबकॉन्शियस माइंड में टैप करके उनके जो पैटर्न्स हैं उनको वो नॉट उसको खोलने में उनकी मदद कर देते हैं, उनकी नॉट खुल जाती है. राइट. आप रेकी भी हीलिंग करते हो. सो रेकी कितना हेल्प करता है, या हीलिंग मोडेलिटीज़ कितना हेल्प करती हैं इन पैटर्न्स को ब्रेक करने में या हील करने में? क्योंकि ब्रेक करना आई डोंट नो कितना पॉसिबल होता है, पर हीलिंग की बात होती है, चाहे रेकी में, प्राणिक हीलिंग में, या कोई भी दूसरी हीलिंग मोडेलिटी के अंदर. राइट. तो ये कितना हेल्प करता है, और इस तरीके की थेरेपीज़ जो हमारी होती हैं वो कितना हेल्प करती हैं? So, see, the work that I do as a therapist is primarily based on all the Western sciences that we've studied. ठीक है. You know, psychology and counseling and therapy and transpersonal regression therapy and everything. All this that we've studied and learned and, you know, that we've been certified by and qualified. Reiki, in my case, I feel, helped me to come up to this level where I could get into this field. बिकॉज देखिए, आपको जब थेरेपिस्ट बनना है और लोगों के साथ काम करना है, तो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अपनी क्लेंजिंग भी करने की ज़रूरत पहले पड़ती है. राइट. यू नीड टू हैव वर्कड ऑन योर ओन सेल्फ, योर ओन रिलेशनशिप्स एंड इशूज. ईच वन ऑफ अस हैज certain challenges in our lives. है ना? We are all human beings at the end of the day. We all live in this society. We have our roles, our responsibilities, and all of us at times feel torn between them, giving the best that we have and expecting from the others. तो कहीं आपकी अपनी कहानी भी चल रही है ना? I got that completely. पर आपकी जो अपनी कहानी है वो भी सबकॉन्शियस माइंड का ही प्ले है, राइट? वो भी कहीं कुछ पैटर्न्स बने होंगे, वो ही कहीं ना कहीं प्ले कर रहे होंगे, है ना? तो उनको रिजॉल्व करने में रेकी ने आपको हेल्प करी.
रेकी से कहानी शुरू हुई और जब हम 4 साल पढ़ रहे थे तब हम पे काम हुआ. Because when you train to be a therapist, so जो transpersonal therapy की आप so when you're learning and you're practicing, so you're practicing on yourself and your course-mates, right, you know, so you work on me, I work on you. तो मैं रिन लगा के आपको चमका रही हूँ, आप रिन लगा के मुझे चमका रही हैं, और इसी तरह हम अपनी हाथ की सफाई कर रहे हैं. तो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, like doctors, you know, you work on dead bodies, you work on them to stitch up and understand what diagnosis, what has to be done. So वो जब आप करते हैं क्लासरूम में, वो आपको facilitate करता है अपने issues से बाहर आने में. So you do inner child work. You work on your childhood and your traumas and your memories. You work on relationships. So you work on your relationship with your children, your husband, your parents, you know, your siblings. So आप अपने ऊपर जब काम करते हैं और experience लेते हैं, तभी आप दूसरे पे काम करने में सक्षम होते हैं. अगर आपके अंदर से healing नहीं है, आप अगर वो चीजों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप वो थेरेपी दे भी नहीं पाओगे. And also you understand the nuances of therapy. Right. You realize कि जब मेरे पे किसी ने काम किया था और उसने मुझे रश किया था और मैं उस वक्त एक ट्रॉमा रीलिव कर रही थी, मुझे बहुत गुस्सा आया था. तो जब मैं क्लाइंट पे काम कर रही हूँ, my better sense will prevail that this person right now is grieving for the loss of her father. I cannot look at my watch and say जल्दी कर time हो गया. No, because I had a client like this who came. She said, Auntie, I went to somebody, I took therapy from that lady, but she was talking to me while looking at her watch. She triggered me even more. And I said, never again will I go to any therapist. Because कोई आपके पास जब हेल्प लेने आता है, वो पहले ही बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, किसी तकलीफ से गुजर रहा है. उसको अगर आप loved important नहीं बना सकते और आप समय और पैसे पे अटक जाते हैं, तो वो तो आपने डबल डैमेज कर दिया उसको. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है ना. तो वो फिर लड़की इसीलिए आई थी क्योंकि उसकी मम्मा को कहीं से मेरा रेफरेंस मिला. शी न्यू शी इज अ नोन लेडी कि भाई ठीक है, इनका काम ठीक है, तुम इनके पास जाओ. एंड द फर्स्ट थिंग दैट चाइल्ड, द मिनट शी एंटर्ड, शी टोल्ड मी दिस, you know, Auntie, I'm one of those who doesn't shy away from addressing my problems. I went for therapy once earlier, but I felt so neglected, unwanted, unimportant that the lady was just looking at the watch ki ho gaya 50 minute beta ab tum jao. And she says that time I was right in the middle of my most emotional state. I can understand. So जब आपने ये किया है तो आपको पता है इसकी अहमियत क्या है कि जब कोई बेचारा अपनी वो दुविधा आपसे शेयर कर रहा है, उस वक्त आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है. तो when you go through all this personally, you are sensitized towards it. I got it. Studying from the book is different. Going through it is different. So child delivery, reading in a book probably would seem very easy, simple. यही तो करना है, यही तो करना है, हो गया. But जब आप actually उसको करते हैं practical में, तब आपको पता लगता है anything can go wrong and you have to be ready for any kind of unexpected twist and turn. That's so true. So as we are seeing कि हमारे बहुत सारे behaviors subconscious mind से आ रहे हैं, patterns बने हुए हैं, और अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में कहीं पर भी stuck हैं, किसी भी एरिया में, रिलेशनशिप हो, आपके सेल्फ डेवलपमेंट की बात हो, आपके करियर की बात हो, मनी का एरिया जैसे आपने बताया, तो कहीं ना कहीं कुछ पैटर्न्स होंगे, कोई खूंटा गड़ा होगा, कोई नॉट बंधी हुई होगी, उसके ऊपर काम करिए. राइट. ट्रांसपर्सनल थेरेपी के अलावा और क्या आप सजेस्ट करेंगे, क्या है जो हेल्प कर सकता है? क्या उनकी डे टू डे लाइफ में भी कुछ ऐसा है जो करके वो अपने पैटर्न्स को समझ सकते हैं और पैटर्न के ऊपर काम कर सकते हैं? सो देखो, आजकल बेसिक अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, एंड दैट इज़ व्हाई यू विल सी ऑन इंस्टा, फेसबुक, एंड इवन आवर मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स are talking and promoting mental health awareness. So basic what I keep telling people and even mothers and children is just be aware of your emotions first. Take a second to just connect and see, क्या मुझे दिन में बहुत बार गुस्सा आता है? क्या मैं बहुत अननेसेसरी चिड़चिड़ा हो जाता हूँ? क्या मैं हर वक्त इम्पेशेंट रहता हूँ? क्या मैं हर वक्त जल्दी में हूँ? Am I always
टॉकिंग नेगेटिव और ऑल दीज इमोशंस, हेल्पलेसनेस महसूस करता हूँ, क्या मैं हर चीज़ करने के बाद गिल्टी फील करता हूँ, सेकेंड गेस करता हूँ अपने आप को, क्या मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हूँ दूसरों के प्रति, अपने प्रति। तो एक पहले आप उतनी अवेयरनेस से शुरू करिए। सही बात। जस्ट बी अवेयर अबाउट इमोशंस, बिकॉज इमोशनल एजुकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे कहीं चर्चा ही नहीं होती है, और जब होती है तो लोग सोचते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं बात करनी, मुझे पागल करार कर दिया जाएगा, और दिल से या मेंटली अनस्टेबल, और या मैं ठीक नहीं हूं। सो एटलीस्ट बिगिन, टेक द फर्स्ट स्टेप, अपने इमोशंस पे गौर करो, जस्ट रिफ्लेक्ट, सी, जैसे हम शीशा देखते हैं हर वक्त अपने आप को, हम कैसे दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, एक बार वो शीशा अंदर की तरफ करके देखो कि मेरे इमोशंस ज्यादातर दिन में कैसे रहते हैं। वहां से फिर कहानी आगे बढ़ेगी। क्या आप इनके ग्रिप में अक्सर रहते हैं, एंगर एंड पेसिमिस्टिक एटीट्यूड, और बीइंग ऑल द टाइम गिल्टी, एंड हम हर चीज को स्ट्रेस में डाल देते हैं। स्ट्रेस्ड, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, वो बहुत स्ट्रेस्ड है, ये बहुत स्ट्रेस्ड है। स्ट्रेस को तोड़ो, उसके नीचे देखो क्या है, इमोशंस को नाम देना भी शुरू करो, और फिर वो कहाँ से आ रहे हैं उसको भी बॉइल डाउन करो। पैटर्न्स तक तो पहुंच जाएंगे, वो तो बात की बात है, बट पहले इमोशंस को तो आइडेंटिफाई करो। सीरियसली, पहले उनको आइडेंटिफाई करके नेम दो, कहाँ से कौन सी चीज से ट्रिगर होता है, इसको तो समझने की कोशिश करो। बिल्कुल एटलीस्ट बिगिन फ्रॉम देयर, एंड इवेंचुअली यू विल रीच वेयर यू हैव टू रीच। ये इग्नोरेंस हटाएं पहले तो। सही बात ये जो पर्दा डला पड़ा है हर चीज पे, बस स्ट्रेस बोल देते हैं। so many times people come, they say I'm stressed, मैं कहूँ okay tell me what stress, फिर उनके पास जवाब ही नहीं होता, because like I told you, Google से वो वर्ड मिल गया, stress. I'm very stressed these days. For what? Because of what? Why? How can we remove it? उसका जवाब नहीं है, बस स्ट्रेस है, मुझे डिप्रेशन हो गया है, मैं एंग्जाइटी होती है मुझे। उसको जब हम तोड़ने लगते हैं तो आगे कुछ आता ही नहीं है। So, बहुत इजीली लेबल करना आसान हो गया है आजकल। तो लेबल्स कर देते हैं, देन दे डू नॉट नो कि नहीं अंदर चल क्या रहा है, व्हाट इज द बीनीथ इट, एग्जैक्टली डिप्रेशन है क्या फील होता है, क्या करते हो। थेरेपी तक जाने की कई बार जरूरत भी नहीं पड़ती है, राइट। बस वो लेबल के बियॉन्ड ही जाना होता है, और वो आप 2 मिनट किसी के साथ बैठे जो बंदा स्थिर हो, जो थोड़ा न्यूट्रल हो। क्या होता है, बच्चे जनरली देखिए आप, उसको स्ट्रेस है, वो अपने हम उम्र वाले से बोलता है यार मुझे स्ट्रेस है, वो अपने 2 स्ट्रेस और दे देता है कि यार मेरे को भी स्ट्रेस है, मेरी मम्मा ने भी मुझे ये बोला, तो ये अपने स्ट्रेस के साथ दोस्त का स्ट्रेस लेके घर आ जाते हैं। तो गए थे अपना सॉर्ट आउट करने, सो वो आप कहाँ पर एड्रेस कर रहे हैं वो गलत पड़ जाता है। सो ये बात है। बट अमिता, व्हाट्स ब्यूटिफुल इज वेरी इनकरेजिंग दैट द न्यूअर जनरेशन, द जेन ज़ी, the millennials, right, they are far more open, right, and confident, right, to come and talk about all this. The problem is हमारी उम्र वाले जनरेशन जो तो है उन्होंने ढक्कन टाइट बंद करके डब्बा रखा हुआ है, right, वो फट जाते हैं बट वो खोलते नहीं है, बात नहीं करते हैं। दोनों ही जनरेशंस कुछ एक्सट्रीम में जा रही हैं, ऐसा लगता है। जैसे तुमने बोला, अभी वाली जेन ज़ी बहुत जल्दी लेबल करने के लिए रेडी रहती है, थोड़े से सिम्टम देखती है, मुझे तो डिप्रेशन हो रहा है। और हमारी वाली है जो शायद इतना अंदर सब कुछ समाते हुए भी, सब परेशानियां होते हुए भी ओपन अप नहीं करने की कोशिश करते। इनको लगता है कि हमारे ऊपर दाग लग जाएगा, हमारे बारे में लोग ऐसे बोलने लगेंगे। करेक्ट। सो दोनों ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है। अवेयरनेस और क्रिएट होने की जरूरत है, थोड़ा सा चीजों को समझने की जरूरत है। एब्सोल्युटली, मोस्ट इम्पोर्टेंट। राइट। सो प्रिंसी, इट वॉज अ ग्रेट प्लेजर टॉक टू यू। बहुत अच्छा लगा, बहुत हमने पैटर्न्स के बारे में बात करी। एट द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहोगे? एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? Life is beautiful. Make the most of it. Each minute, each day is precious. And if there is even something very small that's bothering you, don't hesitate. When there are solutions available, when there are ways to get rid of them, just do it. Utha ke bojha mat chalo. It's not worth it. All my clients who come to me after a successful session, the first thing which is common, which everybody says is, wish I'd done this 10 years ago, wish I'd done this 20 years ago. मैं इतनी hardships अपनी
कम होती, मेरे रिलेशनशिप बच्चों के साथ इतने अच्छे होते, मैं इतनी खुश रह सकती थी, मैं कितना कुछ अपनी लाइफ में कर सकती थी. That's so true. So while you are still here on earth, make the most of this time, because time is the only commodity जो आप पलट के वापस नहीं ला नहीं सकते. ला सकते. That's so true. Thank you, Princy. Thank you. Pleasure.